welcome again and thank you very much for joining me in today's online class under the program समय 10 से 12 वाला हर घर बनेगा पाठशाला. Students, in today's program I am going to talk about note making, and yes, I termed it as note making part 2. As you know, I questioned actually the other part I discussed in my previous video. I questioned the part as note making part 1, so that's why I am terming it as note making part 2. We discussed about what is note making, introduction of note making, definition of note making and features of note making in our previous video. Students, today again we will divide this class into two segments. Firstly, we will discuss points to be remembered while preparing notes or process of note making, okay? Or in second half we will try to have an exercise of note making, okay? So let's come process of note making. Okay, what is a process? Actually process होता क्या है? प्रक्रिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों. आपको आइडिया है. Process is actually sequence of events, okay? Sequence of exercises. कुछ exercises, कुछ events, कुछ काम हमें करने हैं, किस क्रम में वो करना है, किस sequence में, किस order में वो करना है, that is called a process. So here also note making is a process. So एक unseen passage आपके सामने है. So first thing क्या करोगे? Just simply just go through the passage. But that matters. How do you go through that passage? आप उस पैसेज को पढ़ते कैसे? ऑब्वियसली पहला काम तो वही करेगा ना, आप पढ़ेंगे. एंड वी कॉल दैट रीडिंग इज फर्स्ट रीडिंग. ओके, फर्स्ट रीडिंग पहली बार पढ़ना सिंपली. ओके, फर्स्ट रीडिंग, इन फर्स्ट रीडिंग यू आर सपोज टू जस्ट गो थ्रू वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस. ओके, what should be objective? Your objective should be, while making first reading, try to find out the subject that this passage deals with. ये डील किससे कर रहा है, बस उतना अगर आप बेटा गेन कर लेते हो, अगर उतना आप ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लेते हो, दैट इज अचीवमेंट ऑफ योर फर्स्ट लेग ऑफ योर प्रोसेस. आप ये समझेंगे कि मोटे मोटे तौर पर ब्रॉडली दिस पैसेज डील्स विद दैट एंड दैट टॉपिक. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट ब्रॉडर सब्जेक्ट. ओके, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट रीडिंग. Go through the passage carefully, line by line and para by para. Simply try to have a first-hand introduction of the topic. Only objective should be to comprehend a broader subjective idea of the passage. And second point will be second reading. Second reading क्या होगा? Simply to read the passage for second time. Second reading में आपने स्टूडेंट्स क्या किया? आपने उस टॉपिक को और ज़्यादा फिर माइन्यूट अपना दायरे को, और इसको कहते हैं ना, उसको कम्पैक्ट किया, सीमित किया, और उसके बाद फिर आपने वो स्टार्ट किया उसको पढ़ना और उसको ग्रैस्प करना और डीप उसका. सेकेंड रीडिंग, आफ्टर हैविंग अ फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया सब्जेक्ट dealt with in the passage, have another reading, but this time keep in mind the observation of your first reading. Try to extract the more specific or subject oriented understanding. Third point comes underlining the main points. अंडरलाइन आप समझ गए बच्चों? अंडरलाइन आपको क्या करना है? अंडरलाइन आपको करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझते हो, जो आइडियाज आपको लगता है, जो उस टॉपिक, फिर आपने सब टॉपिक ढूंढ लिया सेकंड रीडिंग में, फिर आपको लगा कि उसके आसपास के ये पॉइंट्स हो सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन आप करते जाएंगे. लेट अस सी. आफ्टर और ड्यूरिंग यू हैव अ प्रॉपर second reading. Underline the important sentences and clauses you think are most important or reflect the true message or spirit of the passage. Choose most effective words or phrases as headings and try to arrange them in order. Okay, is it clear? जो आपको लगेगा उसको हेडिंग बनाया जा सकता है, उसे अरेंज कीजिए आप उस तरीके से, उसे ऑर्डर में. ऑर्डर ऑब्वियसली जनरली वो ऑर्डर वही होता है जो सीक्वेंस आपके पैराग्राफ्स का होता है, आप उसको अंडरलाइन करते हो, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर बनता जाएगा. ओके, अंडरलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरलाइन मीन्स दैट इज एक्चुअली पिकिंग अप. अंडरलाइन दैट इज you're categorizing those, what is important and what is less important, what is more important. Okay, वो जो categorization है that is actually बस यही है. अंडरलाइनिंग अगर आपकी सही है, उसी को तो बाद में आपको फॉर्मेट में रखना है, इफ यू नो द फॉर्मेट. ओके, सो अंडरलाइन इज स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट पॉइंट इज योर contextual meaning. Let me write down. What is contextual meaning? Students, contextual meaning संदर्भिक अर्थ जिसे आप हिंदी में कहते हैं. There may be some words in places you think are unknown to you and you don't know the exact meaning. Try to find out their contextual meaning, that is the context in which they are used
concentrate on the words, phrases, sentences preceding and succeeding these words. Yes, then we come to our next point, our fifth point. Yes, formatting. आपको करना क्या है, आप सबसे पहले हेडिंग्स लिखते हो, ओके, देन यू गो टू सब हेडिंग्स, ओके. हेडिंग मीन्स मेन पॉइंट. हर एक जो पैसेज है, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट पैसेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स, ओके. और डिफरेंट पैराग्राफ्स जो है वो डील करते हैं अलग अलग सब हेडिंग से, सब टॉपिक से, ओके. सो आप उसको कहते हैं हेडिंग्स. एक ओवरऑल पैसेज होगा, वो तो टाइटल में आ जाएगा. जो मेन पॉइंट्स आप उसके, उसे आप हेडिंग्स कहते हो. और हेडिंग उसकी स्पोर्टिंग में क्या फिर चीज़ें हैं, थोड़ा और ज़्यादा जो उसको इससे कम थोड़ा हाईलाइट करती है चीज़ों को, या थोड़ा कम रिप्रेजेंट करती है चीज़ों को, उन्हें हम सब हेडिंग करते हैं. तो इसकी जो इंडेंट समझते हो बच्चों आप, इंडेंट मार्जिन, हाशिया, ओके. जो इंडेंट होता है वो बहुत मैटर करता है. ऑल हेडिंग्स मस्ट बी इन वन इंडेंट वाइल सब हेडिंग्स शुड बी अनदर. ये आप हेडिंग इसके नीचे बच्चों आप सब हेडिंग यहां नहीं लिखेंगे आप. तो आपको लिखने का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो ऐसा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके. हेडिंग अगर इस सीध में आएगा, सब हेडिंग इधर आएगा, ओके. और अगला हेडिंग फिर यहां पे आएगा, फिर उसके नेक्स्ट हेडिंग फिर नीचे आएगा. सपोज इस हेडिंग आपको लग रहा है कि दिस हेडिंग इसका थोड़ा कंटेस्ट ज्यादा है, इसके सब हेडिंग ज्यादा बन सकते हैं, तो नेक्स्ट जो इसका सब हेडिंग होगा वो इसी सीध में आएगा, ओके स्टूडेंट्स. तो ये सारे सब हेडिंग्स इधर जाएंगे, ओके. हेडिंग्स सारे इधर आएंगे, ओके. जस्ट और उस तरीके शेप क्या बनती है बच्चों, लाइक ऐसे सब हेडिंग. यहां पे हमारे हेडिंग्स आएंगे, यहां पे हमारे सब हेडिंग आएंगे, ठीक है. अगेन हियर हेडिंग आएगा, यहां सब हेडिंग आता है. एंड इफ देयर इज चांस स्टूडेंट्स, जस्ट कीप इन माइंड, जब आपको लगता है कि सब हेडिंग के भी सब हेडिंग्स हो सकते हैं और पार्ट्स में हो सकते हैं, डेफिनेटली दैट विल टेक अनदर डिफरेंट इंडेंट. फिर सब हेडिंग यहां से शुरू होगा, इस तरफ जाएगा, ओके. हेडिंग्स आपके इसी सीध में सारे आएंगे, सब हेडिंग्स आपके सीध में आएंगे, और सब हेडिंग अगर हैं तो बच्चों इस सीध में आएंगे. ये बहुत जरूरी है फॉर्मेट. आपको करना क्या फॉर्मेटिंग में, इसका जो सीक्वेंस है, अगर इसको आपने कैपिटल ए दिया है, फिर कैपिटल बी आप इसको देंगे, फिर कैपिटल सी आप नेक्स्ट हेडिंग को देंगे. ये जो सीक्वेंस आपकी है, नंबरिंग आपकी है, आप हेडिंग्स का सब हेडिंग्स एक जैसे, सब हेडिंग सब एक जैसे, और सब हेडिंग अगर है तो सब एक जैसे. प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं समझा पा रहा हूँ आपसे. जैसे एक इसको आप अलग सीक्वेंस दीजिए, इसको आप सिंपल स्मॉल ए दे दीजिए, आप इसको 1 दे दीजिए, आप इसको दूसरा 1 दे दीजिए, ये 2 3, ओके. Actually what I intend to say is all sub headings should be given the same sequence. All the headings must be given same sequence. That is I intend to say, nothing else, okay. And another एक और पैटर्न जो आजकल बहुत पॉपुलर होता है, जो बहुत उसको भी फॉलो किया जा सकता है. इफ यू आर गिविंग हेडिंग्स सीक्वेंस नंबर इन नंबर फॉर्म, 1 या आपका एक हेडिंग हो गया, सपोज यू आर डूइंग सो. 2 आपका दूसरा हेडिंग हो गया, 2.3 आपको अगर लगता है आप इस सीक्वेंस में भी दे सकते हो, 1.1 1.2 1.2, जैसे हमारे लेसन या चैप्टर्स का सीक्वेंस रहता है. बट जस्ट रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड डोंट कंफ्यूज योर सीक्वेंस ऑफ सब हेडिंग्स टू हेडिंग्स एंड हेडिंग्स टू सब हेडिंग्स, ओके. सो उसको थोड़ा आप क्लियर कर लें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेटिंग. नाउ लेट अस सी फॉर्मेटिंग. Now put your main ideas or points on a specific format, write them in bold and further write the subheadings of supporting words, phrases. Avoid to write full sentences. Usually if there are more than one paragraphs, the number of headings will be as many as paragraphs. Numbering of all the headings should be of similar kind and that of all the subheadings of other similarity. Different indent should be followed for headings, subheadings and subheadings if there is any, but a single indent to each category, okay. Okay students, so it's clear.
जो हमने इतना टाइम लगा के डिस्कस किया, आपको अलग अलग हेडिंग देना है और एक तो उनका इंडेंट देना है, उनको एक सीध में नहीं लिखना, सिंपल मैं निचोड़ बता रहा हूँ फॉर्मेटिंग का। एक तो आप एक सीध में नहीं लिखेंगे, हेडिंग सारे एक जगह एक सीध में लिखेंगे, सब हेडिंग एक सीध में और सब हेडिंग उसी की सीध में। एक चीज़ इंडेंट आपकी गैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरा जब आप उनको सीक्वेंस देंगे वो अलग अलग देंगे। पूरे सेंटेंसेस आपको नहीं लिखने हैं, कैसे लिखने हैं आपको, हाफ सेंटेंसेस, वो हमने फीचर्स में बच्चों बात की है। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज abbreviations. Okay, we discussed also in our previous video, you can have two types of abbreviations, एक तो जो यूनिवर्सल होती हैं और एक आप सेल्फ मेड भी abbreviations बना सकते हैं जहां पे आपको लगता है repetitions हो रही है। Let us see. Use abbreviations for those words which are large and are used more than once or twice in order to avoid the repetition of same word and to save the time and space. Abbreviations are used, you can use universal abbreviations that is accepted and recognized by all, as well as self-made abbreviations. At the end of the notes, give a key to the abbreviations used and decode all the used abbreviations. So our next point is title. Okay, ये बहुत मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूँ। आप या तो टॉप पर भी टाइटल दे सकते हैं, एट द टॉप ऑफ द योर नोट्स, एट द बॉटम ऑफ योर नोट्स, दोनों जगह। लेकिन एक बात का बच्चों आप ध्यान रखेंगे, अगर आप टॉप पर भी दे रहे हैं, सबसे ऊपर देना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पहले देना चाहेंगे। ऐसा मत कीजिए। यू लीव स्पेस द ब्लैंक एंड देन कम टू नोट मेकिंग। जब नोट मेकिंग आपका पूरा हो जाएगा, प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आप उसको ऊपर नहीं लिखिए, बेशक आपने जगह जो छोड़ी है वहां पे लिखिए बाद में, क्योंकि क्या पता पहले आप जल्दी में कंक्लूजन पे पहुंच गए हो, ये टाइटल हो सकता है, और बाद में नोट्स बनाते बनाते आपका आइडिया। देन कम्स आर की टू एब्रीविएशन। तो स्टूडेंट्स जो आपने की एब्रीविएशंस यूज किए, शॉर्ट फॉर्म जो भी बच्चों आपने यूज की होगी, उसकी आपको नीचे एक की देनी होती है, एंड में आपको नीचे जाके की देनी होती है, उसका क्लू देना होता है कि किस वर्ड, किसके लिए आपने छोटा वर्ड यूज किया। तो राइट ऑल इन द बॉक्स। सपोज यू रोट कॉन्स्टिट्यूशन, CONST for constitution, and then you write CONST and then full form constitution. सिमिलरली जो आपने शॉर्ट फॉर्म यूज किया वो आप इस तरीके से बच्चों इस साइड पे लिखेंगे, और जिसका फुल फॉर्म है आपको यहाँ पे लिखेंगे, ये आप पूरा बॉक्स में लिखेंगे, और इसको आप लिख देते हैं की टू एब्रीविएशन। ओके ओके, वेलकम in this section students. I have a question paper actually. If you can see, this is question of this year's +2 examination. मैं इसको कोशिश करूंगा ये डिस्प्ले हो जाए आपके स्क्रीन पे भी, आप इसे देख पा रहे हो, आप इसे पढ़ने की कोशिश करें, और फिर हम कैसे किस प्रोसेस में हमको नोट्स बनाने हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे, और कंक्लूजन पे जो आपका फॉर्मेट बन के निकलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, वो मैं आपके सामने रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से बच्चों इस तरीके का हो सकता है। और उसके नीचे बच्चों आप देख पा रहे हैं ये की टू एब्रीविएशन, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो मैंने ऊपर अपना एब्रीविएशन यूज किया है, ENG को मैंने इंग्लिश लिख लिया, COMT को कम्युनिटी लिख दिया, इस तरीके से आप देंगे की टू एब्रीविएशंस। और आप ऊपर टॉप पर भी देख रहे हैं बच्चों, मैंने स्पेस छोड़ दिया था, मैंने हेडिंग बाद में लिखा, हाउ वन कैन इम्प्रूव वंस इंग्लिश। और ये सारे इसके आप ध्यान से इसको देखेंगे, टाइम से आप देखेंगे बच्चों, इसमें हेडिंग को अलग सीक्वेंस दी गई है, सब हेडिंग को अलग दी गई है, सब हेडिंग हालांकि कोई बना नहीं है, और इंडेंट भी बच्चों अलग अलग दिए गए, इसकी शेप कुछ इस तरीके से बनेगी, और नीचे की टू एब्रीविएशन जो वो इस तरीके से लिखेंगे। सो दिस इज एन आइडियल स्पेसिमेन ऑफ नोट मेकिंग। पैसेज आपको दिखाया, आप पैसेज भी देख सकते हैं, और उसके हिसाब से नोट्स इस तरीके से बनने चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस वाज अ नोट मेकिंग पार्ट 2। इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे सबसे पहले उसी वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर उसको देखेंगे, ज़रूर उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नए विषय के साथ फिर से मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।